Welcome back to another Torah Tuesday. I'm really excited about this week's insight because this is one of my favorite things about Exodus chapter 1. मैं आपका एक बार और इस तोरा मंगलवार में स्वागत करती हूँ। मैं बहुत उत्साहित हूँ इस हफ्ते की अंतर्दृष्टि के लिए, क्योंकि ये मेरी एक बहुत पसंदीदा अध्याय है जो कि निर्गमन में पाया जाता है। Today we're going to talk about the women in Exodus chapter 1. Maybe you haven't noticed this before. Pharaoh is never named in the book of Exodus. Pharaoh is not a name, it's a title. So any king of Egypt is called a pharaoh. We're not told which pharaoh this is, and that's one of the conundrums that Bible scholars have tried to solve and historians have tried to solve. आज हम इसी अध्याय में कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में शायद आपने कभी पहले ध्यान ना दिया हो। फिरौन कभी एक नाम नहीं परंतु एक शीर्षक है जो कि मिस्र के हर राजा को दिया जाता था। हमें नहीं पता कि इस अध्याय में फिरौन कौन है, लेकिन बहुत से शोधकर्ताओं ने इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की है। But what is interesting is we do have names in Exodus chapter 1, and it's the names of the midwives. We're told in verse 15 that their names are Shiphrah and Puah, and I think it's significant. I think this is the narrator's clue to us of who really has the power in this story. Pharaoh thinks he's controlling everything, but who actually undermines him successfully? It's Shiphrah and Puah, these Hebrew midwives. लेकिन जो दिलचस्प बात है यहाँ पे वो हम देखते हैं कि निर्गमन के पहले अध्याय में उसके 15वां पद में हम देखते हैं कि जो मिडवाइव्स हैं, जो धाइयाँ हैं, उनका नाम दिया गया है और उनका नाम है शिप्रा और पुआ। ये शायद कथावाचक का एक संकेत है। वो ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि इस कहानी का सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो किसका है। फिरौन एक तरफ सोचता है कि उसने सब नियंत्रित कर रखा है, परंतु यहाँ हम देखते हैं कि जो शिप्रा और पुआ हैं, जो दो इब्रानी दाइयाँ हैं, वो उसको कमज़ोर बनाती हैं। Now, we talked last week about how Pharaoh was afraid of a military overthrow. He was afraid that the Israelites would rebel against him, that they would join with some other rebellious nation and beat him in battle. So he has a solution to this. His first plan is to try to oppress the Israelites with really hard labor, and I think he's hoping they won't have any energy left to make offspring, but it doesn't work. They continue to multiply. And so plan B is to pull these two midwives aside, and he tells them this, verse 16, when you are helping the Hebrew women during childbirth on the delivery stool, if you see that the baby is a boy, kill him. But if it is a girl, let her live. Now, I think in Pharaoh's mind, he's thinking, I'm afraid of soldiers coming after me, of armed rebels overthrowing my power. So I'll kill the boys when they're babies and then they won't grow up to be soldiers. हमने पिछले हफ्ते में देखा कि किस तरीके से जो फिरौन था वो घबराया हुआ था इजराइलियों से, क्योंकि वो उसके खिलाफ जाके अगर युद्ध करते हैं तो वो हार जाएगा। तो इसी के लिए, इसी समस्या के लिए उसने एक उपाय निकाला। वो यह था कि उसने इजराइलियों से कठोर परिश्रम करवाया ताकि उनके पास बल ना बचे और वो गिनती में ना बढ़ पाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है और वो लोग और बढ़ते चले जाते हैं। तो उसी के साथ वो दूसरा उपाय निकालता है। वो यह था जो अभी हमने देखा, जो दाइयाँ थी वो उन्हें बुलाता है और उनसे कहता है कि जब तुम इब्री स्त्रियों के पास जाओगी, जब वो जन्म देने वाली होंगी, तो अगर बेटा होगा तो तुम उसे मार डालना और अगर बेटी होगी तो तुम उसे जीवित रखना। तो यहाँ मुझे लगता है कि फिरौन जो था वो यह सोच रहा था कि अगर लड़का होगा तो वो बड़े होके फौज में जाएगा और अगर फौज में जाएगा तो फिर वो युद्ध में भी
अपना योगदान देगा, और अगर ऐसा हुआ तो वो उसके लिए ही एक खतरे का कारण बन सकते हैं। तो उसने पहले ही उनको मार डालना उचित समझा। But in fact, it's the women who he allows to live who undermine him at every turn in Exodus chapter 1. So, and the word for let her live in Hebrew is vachaya. So remember that, vachaya. He's going to let the girls vachaya. Well, the midwives don't obey him. They defy him. As they do their duties, they do not kill the baby boys like they're supposed to. And so he summons them and says, why have you done this? Why have you let the boys live? And the midwives answer him, Hebrew women are not like Egyptian women. They are vigorous. And the word for vigorous in Hebrew is chayot. It's the same word. They're lively. And they give birth before the midwives arrive. So Pharaoh thinks, let's let the girls live, but it's their living, the living of the women, who actually are his main problem, because they give birth before the midwives come. At least that's what the midwives report. And the people continue to increase. और हम देखते हैं कि फिरौन जो है वो बेटियों को जीवित रहने का आदेश देता है, जब वो बोलता है कि बेटों को मार देना और बेटियों को जीवित रहने देना। तो और हम देखते हैं कि आगे कैसे यही स्त्रियां जो हैं वो फिरौन को कमजोर करते हुए नजर आती हैं। इब्री भाषा में जीवित रहने देना को वखाया बोलते हैं, और हम देखते हैं कि जो ये धाइयाँ हैं वो फिरौन की बात नहीं सुनती हैं और वह बेटों को नहीं मारती हैं। और जब फिरौन उनसे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तो वो उत्तर देती है कि जो इब्री स्त्रियां हैं वो मिस्र की स्त्रियों की तरह नहीं हैं, वो उनके समान नहीं हैं और वो बहुत फुर्तीली हैं। और यहाँ जो शब्द फुर्तीली के लिए इस्तेमाल किया है इब्री भाषा में वो है हायो, और ये धाइयों के पहुंचने से पहले ही इब्री स्त्रियां बच्चों को जन्म दे देती हैं। ऐसा करके धाइयों ने फिरौन को बताया, और देखते हैं कि तब फिरौन जो है वो सोचता है कि जो स्त्रियां हैं उनको जीने देना ही उसके लिए एक समस्या बन जाती है, क्योंकि वो फुर्ती से जन्म दे देती हैं और उसके कारण जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। So then he goes with plan C, which is every Hebrew boy that is born you must throw into the Nile, but let every girl live. And again, he's telling them to let them, to vahaya them, to let them be alive. And the story doesn't end here. In chapter 2, it's Moses' mother and Moses' sister who defy Pharaoh's orders by saving Moses' life. Now, they technically obey Pharaoh by putting Moses in the Nile, but they do so in a way that will spare him, they hope. And then eventually Pharaoh's own daughter defies him by drawing this baby out of the water, seeing his cries, hearing him, and having compassion on him and letting him live. और देखते हैं कि तब फिरौन जो है वो सोचता है कि जो स्त्रियां हैं उनको जीने देना ही उसके लिए एक समस्या बन जाती है, क्योंकि वो फुर्ती से जन्म दे देती हैं और उसके कारण जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो उसी के संकेत में वो सोचता है कि क्यों ना मैं एक और समाधान निकालूं, और वो एक और समाधान के साथ आता है, एक और योजना के साथ आता है जो कि पाई जाती है निर्गमन की पुस्तक में उसके पहले अध्याय में, जहाँ वो कहता है उसके आखिरी 22वें पद में, तब वो आज्ञा देता है धाइयों को कि जो बेटा है
पुरुष बच्चा है तुम उसको नील नदी में डाल देना। और ऐसा आदेश वो भाइयों को देता है। जब उसकी पहली योजनाएं सब नाकामयाब हो जाती हैं तो वो तीसरी योजना ये बनाता है। और एक बार और हम देखते हैं कि किस प्रकार से फिरौन जो है वो स्त्रियों को जीवित रहने देता है, उन्हें वाकया जो है वो उनको जीवित रहने देता है। तो ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। हम देखते हैं निर्गमन के दूसरे अध्याय में जब हम आगे पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पे भी मूसा की माँ और उसकी बहन मूसा को जीवित रखते हैं। वो फिरौन की आज्ञा को नहीं मानते हैं और मूसा को जीने देते हैं। वो तकनीकी रूप से फिरौन की आज्ञा मानते भी हैं उसको नील नदी में डालकर, लेकिन वो यह सोचते हैं और इस उम्मीद के साथ डालते हैं कि वो जीवित रहेगा, वो जिएगा। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि फिरौन की खुद की बेटी, फिरौन की जो बेटी थी, वो भी फिरौन की आज्ञा का उल्लंघन करती है और वो फिरौन की जो बात है वो नहीं मानती है और वो मूसा को पानी में से निकालती है। उसको देखती है रोता हुआ तो उसको उसके ऊपर तरस आता है, उसके ऊपर दया आती है। वो उसको निकालती है पानी से और अपने पास रख लेती है और उसको जीने देती है। So Pharaoh is losing his grip on his nation. He is trying these various tools of oppression and they're not working because at every turn a woman undermines his authority. फिरौन जो था वो अपने राज्य पे से नियंत्रण खो रहा था और वो अनेक प्रकार का दबाव डालने की कोशिश करता है अपनी प्रजा के ऊपर, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी हर कोशिश एक स्त्री, एक महिला के द्वारा उसका जो अधिकार है वो कमजोर पड़ जाता है। Just a look ahead to chapter 5, we see that Moses is about to die in chapter 5 because he's failed to circumcise his sons, and his wife saves his life there too. So in the narrative of Exodus, we have multiple occasions where women save the lives of Moses and the other men, and do so by engaging in civil disobedience, a peaceful protest against the oppressive empire. और आगे के 5वें अध्याय में भी जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं जहाँ पे मूसा मरने वाला होता है और उसकी पत्नी जो है वो उसकी जान बचाती है। और जैसे जैसे हम आगे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से मूसा की जान जो है वो कई प्रकार की महिलाओं ने बचाई और मूसा की ही जान नहीं परंतु बहुत सारे ऐसे पुरुषों की भी जान जो है वो महिलाओं ने बचाई। और ये बहुत ही खूबसूरती से हम देखते हैं जो महिलाओं का जो भूमिका है जो निभाती हैं और किस प्रकार से उन्होंने जो उनके ऊपर दबाव था उन्होंने शांति पूर्वक उसका उल्लंघन किया। सामान्य अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस के द्वारा उन्होंने ये जो सारे दबाव उनके ऊपर थे और किस तरीके से उन्होंने कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने वो इस सब से उभर कर आई। None of them overstepped the bounds of their family role, their midwife, wife, sister, daughter, mother. They're all fulfilling their normal roles in that society, and yet they're doing so in ways that defy Pharaoh subversively. और हमने देखा कि इसी के दौरान, इसी सब बातों के दौरान वो कभी भी अपना कर्तव्य उन्होंने नहीं भूला। फिर चाहे वो भाई का कर्तव्य निभाना हो या पत्नी का हो या बेटी का हो या माँ का हो या बहन का हो, उन्होंने बखूबी अपना कर्तव्य निभाया। It's a brilliant narrative and an exciting beginning to a really great book. I hope you'll stay with me for another Torah Tuesday next week. और
आगे भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से निर्गमन की पूरी पुस्तक में महिलाओं का जिक्र किया गया है। तो एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य है देखने का कि महिलाओं का जो भूमिका है वो कैसे निभाई गई है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे साथ तोरा ट्यूसडे में तोरा मंगलवार में जुड़े रहेंगे और आगे के अगले हफ्ते में भी आप मेरे साथ जुड़ेंगे और हम और बात करेंगे। In the meantime, I would love for you to share the word with friends of yours who you think might find this interesting. And I'd love to know if you've heard this before, if you've noticed this before about the women in Exodus. Drop me a comment below and tell me what you think. Have a great week. और इस समय में मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप इस संदेश को अपने दोस्तों के साथ भी बांटें और अगर आपने भी इस के बारे में पढ़ा है या अगर आपने कुछ ऐसा खोज किया है खास तौर से ये स्त्रियों के बारे में निर्गमन की पुस्तक में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं आप लोगों से सुनने के लिए उत्साहित रहूंगी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू।